Hello everyone. So as you can see, the entire setup, yes, it's going to be the bridal makeup session. We have an amazing makeup artist. She has been certified by Sedesco as one of the trained and certified makeup artists, Miss Chaya Gotecha. And not just that, she has also been to IFA Awards USA, wherein she has actually done celebrity makeup too. So we are here to get the answers as a bride from the makeup artist, that which makeup look will be best for you, which outfit should be best for you, and at the same time making sure that you feel comfortable. We have a real bride out here. Her name is Ankita. She's going to get married this December. And I'm sure as you, she also has a lot of questions. And of course, the photographer out here, me, and making sure that वो photos में अच्छा लगना चाहिए. अरे makeup artist को भी बोल देते हैं कि यार देखो तुम ऐसा ही makeup करना को photos में अच्छा लगेगा. Guests तो आके चले जाएंगे पर photos कैसे आ रहे हैं, right? And here is the Instagram link of the makeup artist. And of course mine. So हमारा सबसे पहला आपको ये क्वेश्चन है कि कौन से कलर का आउटफिट लेना चाहिए. अभी अगर हम मार्केट में जाते हैं आपको ये क्वेश्चन होगा कि कौन से कलर का जो है आउटफिट हमें लेना चाहिए, क्योंकि भाई कियारा आडवाणी की शादी के बाद तो हमें सबको पेस्टल लहंगे चाहिए. अनुष्का शर्मा ने तो पिंक पे थप्पा मार दिया है, ठीक है. कोई रेड पहन रहा है, कोई ग्रीन भी पहन रहा है, कोई मल्टी पहन रहा है. यू डोंट नो कि कौन सा अच्छा लगेगा. आपके हिसाब से कौन सा कलर बेस्ट होगा? Hi, I am Chaya Gotecha, pro makeup artist from Bombay. Hi, Mansi. Hi. And thank you so much for, giving me this chance to get so many questions. Even my brides are also asking me a lot question when they are coming for the trial and when they are booking for the, bridal day, because that is the dream day of each and every girl. I know that. और ये जो क्वेश्चन मानसी ने हमें पूछे वो हमें बहुत बार आंसर्स देने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स रियली कॉमन क्वेश्चन और सबके माइंड में वो रहता ही है. तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज के कलर ऑफ द लहंगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ अगर जाते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेस्टल शेड्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट जो फेयर टोन है या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लोरिस है तो वो लोग अगर वो चूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड. एज वेल एज इफ़ यू आर लाइक आई बिलीव ट्रेडिशनल मोर, तो मैं मेरे हिसाब से या मेरी आइडिया आपको शेयर करूं तो मैं ज़्यादातर ब्राइट कलर्स लाइक रेड इज़ द बेस्ट, इज़ ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज एक शगुन के तौर से भी अगर हम लोग चुनते हैं तो रेड कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. और रेड कलर एक ऐसा कलर है जो एकदम लाइक कोई भी स्किन टोन, कोई भी फेस कट, कोई भी कलर, कोई भी ब्राइट को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो आई वुड प्रेफर अ ब्राइट कलर्स ऑलवेज. यस. ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि जब हम लोग ज्वेलरी की बात करें तो कौन सी ज्वेलरी हमारे पे अच्छी लगेगी, क्योंकि आजकल लोग डेंटी ज्वेलरी मतलब बहुत ही छोटी सी भी ज्वेलरी पहन रहे हैं, काफी लोग एकदम ही महारानी ब्राइडल लुक पहन रहे हैं और दोनों अपने हिसाब से अच्छा लगता है. तो आप फिर कैसे सजेस्ट करोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आउटफिट हमें नज़र में रखना ही है. एट द सेम टाइम वी नीड टू keep the face cut and the body structure of the bridal. See, if you have a really heavy body and little wide shoulder, you need to wear very delicate and a long jewelry. Then it will give you a very elegant and very beautiful look. But if you have like a very high neck and oval shape of your face, then I would recommend the choker kind of things and all. And always delicate and real jewelry is always looking elegant. So if you are going with the elegant side, you can wear a small and delicate jewelry. But yes, of course, for the photogenic, and if really the people have a very good Maharani and Maharani kind of look, then they can go with the very big jewelries also. And always try to wear the contrast color the jewelry which complement your outfit and your face cut and your makeup. So I would say like जैसे कि कियारा आडवाणी ने पिंक और ग्रीन पहना, आपने अभी यहाँ पे भी रेड और ग्रीन रखा है, तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स. यूजुअली हमारा माइंडसेट इतने सालों में यही रहता है कि रेड लहंगा है तो बहुत तो व्हाइट पहनेंगे क्योंकि उसमें वो वर्क किया है, या तो डायरेक्ट रेड ज्वेलरी ही पहनेंगे, गोल्ड ज्वेलरी पहनेंगे. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग क्यों, मतलब
सी ऑलवेज जब भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी देते हैं, जैसे कियारा आडवाणी, शी इज वेयरिंग पिंक आउटफिट, वेरी पेस्टल पिंक, एंड विद दैट शी इज गिविंग द एमरल्ड ग्रीन कलर का ज्वेलरी. तो दैट इज वेरी, आई मीन यू नो, इट लुक्स कॉन्ट्रास्ट एंड इट इज गिविंग द कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट्स. जैसे कलर व्हील इज वेरी मेजर पार्ट इन आवर मेकअप आर्टिस्ट सेशन, इवन इन एवरीवेयर. सो लाइक उसमें भी जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करते हैं, दैट सेम थिंग वी आर यूजिंग in the jewelry. So today also I am just trying, my bridal is wearing the red lehenga, full red lehenga. So instead of giving the white and the gold jewelry, I am giving her gold and green jewelry. So it will be like without makeup also it complement her face. मुझे ये बताइए, ये तो आउट ऐसा है मेरे माइंड में कि जब मैंने आलिया भट्ट का लुक देखा था, उसने तो कोई भी मतलब इतना सिंपलिस्टिक कर दिया था मेकअप, मतलब उसकी तो मेहंदी भी बहुत छोटी थी. तो आप उसके जो लोग हैं जो कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज नहीं कर रहे हैं, उल्टा सेम टू सेम यूज कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट फिर कैसे चलता है? They have a different, like they want very substitute makeup, they want very subtle look, they don't want to be look like a very heavy and gaudy bride, so they will choose that kind of look. And nowadays everything is trend. According to you, if you feel comfortable, if you can carry any shades like a single color also, it will give you a beautiful look, because no makeup look is really in nowadays in trendy. मुझे ये बताइए कि जब ये लोग इतना मिनिमलिस्टिक करते हैं, तो ये तो चलो सेलिब्रिटी लोग हैं, ये तो काफी बार वेडिंग के जोड़े में ऑलरेडी आ चुके होते हैं. सो जो लड़की पहली बार आती है आपके पास, जो बोले नहीं मुझे बहुत ही मिनिमलिस्टिक चाहिए, तो क्या वो रेड लहंगे में भी मिनिमलिस्टिक कर सकती है? Yes. Color of the lehenga is nowadays what happened, no, people want just the nude makeups, and that is really looking nice, because after 5 years when you see your photograph you will see yourself, not any other person. So like I would say कि go with the elegant makeup, very substitute makeup and glowing, the dewy one, not the matte one. Previously we were using the matte colors, matte eyeshadows, matte foundations and all, but nowadays everybody wants the dewy skin kind of makeup, which is really looking good. After 5 years also you will be happy to see your pictures. तो ये सटल लुक का इसलिए ट्रेंड आया ताकि वो जो है सालों के बाद भी अगर पिक्चर्स देखे तो फिर भी वो लगे. इट्स आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन. मैंने काफ़ी बार ब्राइड्स को अपनी दादी की और मम्मी की साड़ियाँ शादी में पहनते देखा है. आई जस्ट सॉ वीडियो लाइक वी शॉट, एंड उसने जो मंगलसूत्र पहना था, शी गॉट मैरिड जर्मन ऑल टुगेदर, गोरा था वो, एंड उसने जो उसको मंगलसूत्र पहनाया वो उसकी आजी का था, मतलब उसकी दादी का मंगलसूत्र. तो आज ये सारी ऑथेंटिसिटी आ रही है. सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट कैसा है कि वो साड़ी की डिज़ाइन तो बड़ी ओल्ड है ना, पर अभी उसको एकदम नए ट्रेंड से आप कैसे दिखाओगे? फिर तो आप पे ही रहेगा, क्योंकि ज्वेलरी सारी चीजें तो पुरानी है, तो उसको नया कैसे आप दिखाओगे? चैलेंजिंग नहीं होगा? या मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ ही एक चैलेंज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम right now what the trend is going, we need to carry each and everything, like from ring light to chair and each and every single thing which is really required for the wedding brides. and हमारा जो काम है वो आज एकदम टफ, यानी कॉम्पिटिटर ऐसे भी हो गया है in all the way, like financial way, at the same time products अभी बहुत सारे मार्केट में नए आ गए. तो हम लोग काफ़ी ब्राइड्स ऐसे भी पूछते रहते हैं हमें क्वेश्चन, दिस इज़ लाइक व्हाट जनरल क्वेश्चन आई एम गेटिंग दैट फ्रॉम द ब्राइड्स, कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हो. क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मार्केट में दो ही चीज़ ज़्यादा फेमस है, लाइक बॉबी ब्राउन यूज़ करते हो, मैक यूज़ करते हो, कौन सा प्रोडक्ट. तो आई वुड से ऑलवेज टू दैट ब्राइड्स कि भाई product is not important, the technique is important, the experience of the makeup artist is really important, because if you are getting any product तो जो आपके स्किन को सूट करे that is the best product for your skin types, right? So I would say that. and जैसे मानसी ने मुझे पूछा कि ज्वेलरी एथेंटिक है, यानी बहुत ज़्यादा एंटिक है, पुरानी है, तो उनको हम लोग सही में बोले ना तो that is no matter how it looks, but it is a love, और love is like that कि it gives you always glow and more blessing, I would say,
कि that blessing is always there. So of course we are trying to give them if there is a beautiful sari which is really antique, I mean बहुत ज़्यादा पुरानी है मगर उनको as a blessing she wants to wear, then we will give the a different type of wrap, अच्छा सा एक रैप करके उनको एक डिफरेंट लुक देने की ट्राई करेंगे. ऑफ कोर्स इट डिपेंड ऑन द आउटफिट एज वेल, बट या वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड ट्रेंडी. यूजुअली हर ब्राइड के दिमाग में ही होता है कि देखो अभी मेरा शादी होगा, उसके बाद मेरा रिसेप्शन है, तो लंबा मेकअप टिकेगा कि नहीं टिकेगा. That question because my skin is very oily, and as you said, dewy makeup looks good, but I have a doubt, will it look good on me because I have really oily skin. Yes, and today Ankita we will give you the dewy makeup and long lasting as well. Okay, so your question will be shot out very soon. पर मुझे बताइए कि जो भी लड़की लॉन्ग लास्टिंग सोच के आपके पास आती है कि ठीक है आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर दोगे, फिर होता है कि भाई जैसे कि इनको होगा कि मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड है, अभी मेरा भी फेस ब्रॉड है, आप कैसे हमें पतला दिखाओगे? ये फोटोग्राफर एक हद तक पतला कर सकता है, हम तो यही बोलेंगे मेकअप आर्टिस्ट को बोलो आपके चेहरे के साथ कुछ करें, क्योंकि हम तो डायरेक्ट खींचने वाले लोग हैं. तो फिर आप कैसे पतला दिखाओगे? See, the best part is contour of the makeup because nowadays everybody टाइम कितना भी ब्राइडल के पास हो बट वो खुद डाइट नहीं करते, ना ही यानी वो सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि डाइट नहीं करते. तो उसी हिसाब से हम लोग देखने जाए तो कॉन्टोर करके ही हम लोग ऑफ कोर्स, बट येस हम लोग इतना भी कॉन्टोर नहीं करते क्योंकि जो नेक्स्ट उनके बगल में आएंगे आंटी जी वो सीधा ऐसे ही बोलेंगे ये यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ये गालों पे क्या है, काला काला लग रहा है, काला काला लग रहा है. तो ऑफ कोर्स नॉट, वी आर टेकिंग वेरी नेचुरल वे एंड यस बहुत अच्छे से नेचुरली अभी कॉन्टोर होता है, जिससे हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अंकिता's फेस इज वेरी प्रॉपर राउंड फेस राइट, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका ओवल यानी हेयर से और मेकअप. यस यस, नाउअडेज एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू नो एक मैंने ब्राइड एक्चुअली देखी थी एक शादी में, जहाँ पे जब वो मेरे सामने आई वाज अ बिट लाइक ओह गॉड, क्योंकि उसका जो मेकअप था उसके कॉन्टोर्स प्रॉपरली दिख भी रहे थे 1 2 3, मतलब मैं वो क्लियरली दिख रहा था. वो फोटोज में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खींचू उसके बाद ठीक है, पर पर्सन में बहुत बुरा लग रहा था. सो एट द एंड ऑफ द डे शादियों में सब आने वाले हैं, आपको देखने वाले और घूर घूर के देखने वाले हैं. सो यू नो ये भी एक मैशअप नहीं होना चाहिए. और सेकेंडली मैंने ये भी देखा है कि ना लड़का शॉक में ही चला गया कि ये दिखती कैसी थी अब कैसी दिख रही है. सो आई थिंक उतना भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी के चेहरे पे लाना इज अ बिट टू मच राइट. या आई ऑलवेज प्रेफर द नेचुरल मेकअप इज द बेस्ट मेकअप. जो आपका स्किन है उसी को आप एक्सपोज करो, उसी को आप एनहांस करो, देन इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल लुक. योर दूल्हा will not shocked as well as your mother-in-law feel कि you are your, I mean she is my बहू only, है ना. यही चीज आपको अगर मॉडल्स पे करनी है ऑफ कोर्स यू कैन डू इट कि यू वांट टू शो योर टैलेंट अबाउट योर मेकअप, तो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेकअप्स मॉडल्स पे ट्राई कर लो. बट आई ऑलवेज प्रेफर कि ब्राइड्स है तो उसको आप जो है वही दिखाओ, दैट विल द बेस्ट. यूजुअली फोटोग्राफर्स को मेकअप आर्टिस्ट से आई एम श्योर जो भी फोटोग्राफर ये देख रहे हैं, आई एम श्योर काफ़ी फोटोग्राफर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सबको मेकअप आर्टिस्ट से एक कंप्लेन हमेशा रहती है, बहुत टाइम लगा रहे हो, कब खत्म करोगे, कब हमारा कैमरा हम लोग चालू करें फोटो खींचे, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए. सी एक थिंक जो मेरा है काम लाइक मेकअप का, तो मैं उसी पे गौर करूँ तो बेटर है. बट नाउअडेज व्हाट हैपन, we have a ring light also, we have a good smartphones also. तो अभी जो फोटोग्राफर का आधा काम है ना पहले हम लोग ही कर लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट करते हैं. पहले खुद रिंग लाइट लेके अपना रील्स बना लो. हाँ, फिर वो पहले इंस्टा पे वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग सून वाले पोस्ट डाल दो. वो सारी चीजों में टाइम इतना स्पेंड हो जाता है, तो समटाइम्स व्हाट हैपन फोटोग्राफर डजंट गेट द टाइम टू व्हाट एवर द डिजायरनेस दे हैव कि मैं ये क्लाइंट को ये दे सकूं या ये क्लाइंट को इतनी अच्छी वीडियोस बना के दे सकूं, तो उतना टाइम ही नहीं होता कि वो लोग भी क्या करें. एवरेज मेकअप आर्टिस्ट यूजुअली मैंने देखा है 3 घंटा लगा देती है. ठीक है, कम से कम वो एकदम फास्ट होगी तो 1.5 घंटे में करेगी, स्लो होगी तो 4 घंटे भी ले सकती है, पर 3-3.5 घंटे. आपको क्या लगता है इतना एवरेज मेकअप आर्टिस्ट टाइम लेता है कि नहीं? लेते हैं काफ़ी लोग,
बट मुझे लगता है कि 1.5 से पौने 2 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फ्रेश रहती है. इवन द ब्राइड ऑल्सो फील फ्रेशनेस आफ्टर 3 years. इवन शी इज नॉट इन टायर्ड दैट, या शी इज सो टायर्ड कि शी इज नॉट एबल टू गिव द पोजेज ऑल्सो विद द स्माइल फेस. मुझे ये बताइए, ट्रायल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ब्राइड के लिए कि उसका ट्रायल्स, क्योंकि आजकल ट्रायल्स के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं क्योंकि उनके ऊपर उनको मेहनत करना है. तो आपको क्या लगता है, ट्रायल जरूरी है? ट्रायल, मेकअप ट्रायल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको सेटिस्फाइड है उनके पिक्चर्स से तो येस, मेकअप ट्रायल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इवन आई डोंट गिव द मेकअप ट्रायल टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट येस, हेयर स्टाइल ट्रायल एंड ज्वेलरी ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस दिन आपको कोई भी, जो आपका वेडिंग डे है उसमें आपको कोई भी इशू ना हो और आप अच्छे से फास्ट काम कर सकें. आपका काम, आपको पता है कि मुझे यही हेयर करना है, यही ज्वेलरी पहनाना है, तो इट्स इजी फॉर यू. और ब्राइड के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि हाँ, उनको पता है कि मेरा ओवरऑल लुक इस तरह से आने वाला है. एक सच बात बोलूँ ना, जो मैं फेस कर रही हूँ लास्ट 18 years आई एम इन दिस एक्सपीरियंस. सो लाइक, ट्रायल कितना भी कर लो, मेहनत कितनी भी कर लो, बट जो मेन डी डे है, लाइक वेडिंग डे है, उस पे जो आपका लुक आने वाला है वो डिफरेंट ही आता है. Because you're glowing different. Yes, Because you're glowing different. That is blessing of the God is always there. अच्छा, मेरा लास्ट सिर्फ 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है कि क्या डाइट फॉलो करना चाहिए एक ब्राइड को बिफोर आवर वेडिंग डे? ये काफी बार होता है कि क्या करें कि हमारी स्किन थोड़े टाइम के लिए, वो दिन के लिए ग्लोइंग हो जाए. भले हम पूरा साल आराम कर सब बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, पर वो टाइम के लिए मेरी स्किन थोड़ी ग्लोइंग हो. थोड़ी पतली भी दिखो. मोस्टली ब्राइड्स वांट्स कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करो कि 2-3 महीने हम लोग यूज़ करें और अच्छा स्किन हो जाए, लाइक बहुत अच्छा फ्लोरिस लुक आ जाए. बट वी आर नॉट मैजिशियंस यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी आर जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट. बी क्लियर. सो लाइक, मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि आप अच्छा खाओगे, अच्छा इनपुट दोगे. अगर आपके पास 6 महीना भी टाइम है, इफ़ यू आर बुक मी बिफोर प्रायर 6 months, देन आई विल गिव यू अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन अबाउट योर, अकॉर्डिंग टू योर स्किन. जो प्रोडक्ट आपको लगाने हैं वो भी, जो ट्रीटमेंट्स आपको रिक्वायर है उतना ही आप करो, बहुत ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि यू आर यंग स्किन, यू डोंट नीड सो मेनी फेशियल्स एंड ऑल. बट येस, whatever you need, that is a good hydration of your skin. क्योंकि आप बाहर जाते हो, शॉपिंग करते हो, टैनिंग हो जाता है फेस पे, तो वो सारी चीज़ आपको सनसेफ लगा के जाना चाहिए. आपके फेस के हिसाब के, आपके स्किन के हिसाब से कौन सा ज़रूरी है, दैट आई विल गाइड टू माई ब्राइड्स. In my package, we are introducing the dental package also, because smile is really important. So yes, we have a very good package for the bride के उसके परफेक्ट वेडिंग डे में शी लुक्स अ परफेक्ट ब्राइड. उनके फेस के हिसाब से कौन सी हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है? आजकल लड़कियां खुले बाल भी रख रही है, कोई बन बना रहा है, हाउ वुड यू डिसाइड? कोई कर्ल्स ले रहा है तो कोई स्ट्रेट वे भी कर रहा है. मैं आपको बताऊं कि लाइक ब्राइड्स की एक अपनी चॉइस होती है जो हम लोग बहुत ज्यादा टर्न नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते. लाइक हमें ब्राइड को चाहिए कि वो ट्रेडिशनल में रहे, बट अगर ओपन हेयर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं. बट हाँ, वो कैरी अच्छे से करनी चाहिए. और हम लोग आलिया भट्ट और ऐसे सेलिब्रिटी है नहीं कि एवरी 15 minutes उसको कर्ल्स करके और लाइक अच्छा सा लुक दे, तो वो थोड़ा सा बिगड़ने वाला है. वो माइंडसेट करके ही जाना है कि हार पहनाते टाइम या बैठने के टाइम या दुपट्टा इधर उधर होने इसलिए फोटोज पहले खिंचवा लेने चाहिए, बाद में नहीं खिंचवाने चाहिए, क्योंकि पहले जो आपका फ्रेश लुक है उसमें फोटोज खिंचवा लो. उसके बाद अभी टाइम नहीं है, बाद में लेंगे, शादी खत्म होने के बाद जब हॉल वाला लाइट बंद कर रहा है फिर बोल रहे हो चलो अभी खाने खाने का टाइम है, खाना खाने चले गए. खाना खाने के बाद हम यहाँ पे बैठे आपके लिए, ठीक है, एंड तक 2 बजे तक बैठे, अभी आएंगे और पूरा यहाँ से जो विदाई का पूरा यहाँ पे काजल लगा हुआ है, पसीना आ रहा है, मतलब जाओ अभी वापस कुछ करके आओ, वापस आएगी आधे घंटे के बाद, फिर अभी खिंचो, अभी वो लाइट बंद कर रहा है, ठीक है, अभी 2-4 लाइट लगा के. वो बहुत ही शैबी फोटोज होते हैं, खींचने के लिए हम तो खींच देते हैं. बट यू नो, फ्रेश लुक, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो टाइम है वो मेकअप आर्टिस्ट को 3 घंटा रख दो, ठीक है, फोटोग्राफर के लिए 1 घंटा रख दो. 4 घंटे का अगर आप स्पेस लेके घूमते हो तब जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास होने के बाद वो 4 घंटे में आपको जो एक्चुअली चाहिए वो आपको मिल जाता है. अगर आप सोचो कि शिट यार मंडप पूरे में तो 3 के बजाय 4 घंटे लगा दिए पंडित जी ने, अभी क्या कर सकते हैं, अभी लेट्स चिप इन, सारे घंटे चिप इन कर दो, फिर खत्म हो जाता है. हम कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ काम कर रहे हैं.
Yes. एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई एम श्योर अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। थैंक यू सो मच छाया जी। इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। हम लोग जो फोटोग्राफी का काम करते हैं उसकी भी जो इंस्टाग्राम लिंक वगैरह है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला है और यहाँ पे नंबर डाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।